آپ کو ایک چیز محسوس ہوگی کہ تمام پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پہ اکٹھی ہو چکی ہے، اور جہاں باہر ایک بے چینی ہے، جہاں باہر ایک ایسی ایک طوفان اٹھا ہوا ہے کہ اب سٹیپ کیا ہوگا، اب کیا پوزیشن ہوگی، کریں گے کیا، وہاں وہ لوگ اندر سکون سے اس ٹائم اندر بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو اڈیالہ جیل سے حکم آیا، اڈیالہ جیل سے جو ایک پیغام آیا، اس کو فالو کرنا ہے۔ جو اہم پریس کانفرنس کی گئی، اور پھر آج کہا جا رہا ہے کہ آج پشاور میں ہیلی کاپٹر اس طرح اڑ رہے تھے، اس طرح آ رہے تھے، اس طرح جا رہے تھے جیسے پشاور میں نقشے چلتے ہیں۔ جی جی، یہ عدیل صاحب ہیں، یہ ایم پی ہیں ہری پور سے، کتنے 105 انشاءاللہ ٹچ کریں گے، 105 ٹچ کریں گے۔ دیکھیں جی، یہ تحریک انصاف سرپرائز دینے کے لیے تیار ہے جی۔ عدیل صاحب، ابھی آپ بھی اندر موجود تھے، کیسا سرپرائز دینے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اس ٹائم قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور مخالفین بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کیا موو کرنے جا رہی ہے، کیا ان کا ارادہ ہے، کیا سٹیپ لے گی؟ بس انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو عمران خان کی نومینیشن ہے اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، پورا خیبر پختونخوا کھڑا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں آپ کو انشاءاللہ سرپرائز بھی دیں گے اور گڈ سرپرائز دیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو دوسری جماعتوں میں سے بھی کچھ بندے انشاءاللہ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں گے۔ السلام علیکم جی، اس ٹائم میں اسپیکر ہاؤس پشاور میں موجود ہوں، اور ابھی چائے کی چسکی لے کر آئے ہیں، اور آپ کو بتانا لازم سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم چل کیا رہا ہے۔ جس حالات میں آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم ساری قوم ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ ہیں جو مخالفین ہیں، جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سہیل افریدی کو سی ایم نہ بننے دیں، سہیل افریدی سی ایم نہ بنے، ان کے لیے بھی بہت سی خبریں ہیں اور تمام قوم کے لیے بہت سی خبریں ہیں۔ اس سے میں پہلے آپ کو اسپیکر ہاؤس کا ماحول دکھا دیتا ہوں، اور آپ جو اندر کا ماحول ہے وہ آپ سکرین پہ دیکھ لیجیے گا کس طرح چائے کی چسکیاں چل رہی ہیں۔ یہ رات کا وقت ہے، اور رات کے اس وقت آپ دکھائیں جی، یہ اسپیکر ہاؤس کا ماحول ہے، نوجوان پہنچے ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، یوسوی کے نوجوان ہیں، یہ سب کے نوجوان ہیں، اور یہ رات کی اس وقت تک جو نوجوان یہاں پر موجود ہیں، ان کا یہاں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر سے ایک کارکن اٹھ کے سی ایم بننے جا رہا ہے، اور اس چیز کی ان کو خوشی ہے۔ تو دوسرا، کیونکہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا ہونے جا رہا ہے، سہیل افریدی کے سی ایم بننے کے حوالے سے جو اہم پریس کانفرنس کی گئی، اور پھر آج کہا جا رہا ہے کہ آج پشاور میں ہیلی کاپٹر اس طرح اڑ رہے تھے، اس طرح آ رہے تھے، اس طرح جا رہے تھے جیسے پشاور میں نقشے چلتے ہیں۔ مطلب اتنی بے چینی ہے، اتنی یہ ساری صورتحال ہے، اور پھر اس طرح ٹویٹ کی جا رہی ہیں۔ تو سہیل افریدی سے ابھی میری بات ہوئی، میں نے سہیل افریدی سے پوچھا کہ آپ کے حوالے سے بہت سی چیزیں کی جا رہی ہیں، بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، تو سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ میں سکون میں ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے لیڈر کا حکم ہے، اڈیالہ جیل سے حکم ہے، اور میری قوم نے اس حکم کو لبیک کہا ہے۔ اسپیشلی جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، اسپیشلی جو تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہیں، انہوں نے لبیک کہا ہے۔ ایک چیز واضح کر دوں، کنفرم کر دوں کہ تحریک انصاف کا ایک بھی ایم پی اے کسی آفر کے باوجود، کسی پریشر کے باوجود تحریک انصاف چھوڑنے کو راضی نہیں ہے۔ تمام کے تمام ایم پی ایس کی تعداد مکمل ہے، اور ایک بھی ایم پی اے کسی بھی صورت پیچھے نہیں جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات کہ سہیل افریدی کا رستہ روکنے کے لیے بھرپور کوششیں ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ علی امین نے استعفیٰ جو ہے وہ جمع کروایا، اور پھر جو ہیں گورنر صاحب وہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ مجھے موصول نہیں ہوا، لیکن دوبارہ سے استعفیٰ جمع کروایا جا رہا ہے ریٹن، کہا گیا کہ یہ کمپیوٹر پہ افیکٹ ہوا ہے، اب علی امین گنڈا پور دوبارہ سے استعفیٰ جمع کروائیں گے ہینڈ ریٹن، اور وہ یقیناً تھوڑی دیر تک پہنچ جائے گا، اور اگر یہ نہیں کرتے تو اسپیکر کے پاس بہت سے اختیارات ہیں، اور اسپیکر یہ وہ اسپیکر ہے، اسپیکر میں بابر سلیم سواتی کی بات کروں تو یہ قاسم سوری کی یاد تازہ کریں گے۔ آپ کو قاسم سوری کے الفاظ یاد ہوں گے، جب تمام قوم دیکھ رہی تھی تو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دی، اور اس رولنگ کی سزا یقیناً انہیں آج تک مل رہی ہے، جس وجہ سے انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ تو یہ اسپیکر، کیونکہ میں اسپیکر ہاؤس میں موجود ہوں، یہ اسپیکر اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا، اور یہ اسپیکر جو بابر سلیم سواتی ہیں ایسا سرپرائز دیں گے کہ تمام لوگ حیران ہو جائیں گے۔ اور ابھی میں جب وہاں موجود تھا، قانون دان تھے، سلمان اکرم راجہ اسلام آباد سے پہنچے، اس کے علاوہ جو یہاں کے اے جی ہیں وہ یہاں پر موجود تھے، اور سابق اسپیکر اسد کیسر موجود تھے، شاہد ہٹک موجود تھے، جنید اکبر موجود تھے، اس کے علاوہ وہاں مینا خان موجود تھے، اور تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایس وہاں موجود تھے۔
एक चीज अगर आप ये वीडियो देखें जिसमें तमाम लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं, आपको एक चीज महसूस होगी कि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे इकट्ठी हो चुकी है। और जहां बाहर एक बेचैनी है, जहां बाहर एक ऐसे ही एक तूफान उठा हुआ है कि अब स्टेप क्या होगा, अब क्या पोजीशन होगी, करेंगे क्या, वहां वो लोग अंदर सुकून से इस टाइम अंदर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, साथ गपशप कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जो अडयाला जेल से हुक्म आया, अडयाला जेल से जो एक पैगाम आया, उसको फॉलो करना है, साहब ने करना है। और इमरान खान ने कहा कि मेरा जो सीएम होगा खैबर पख्तूनख्वा का, वो सुहेल अफरीदी होगा, और उस चीज को लबई कहा गया है। क्योंकि ये कहा जा रहा था, एक और खबरें चल रही हैं कि असम्बली का इजलास बुला लिया गया, स्पीकर रवाना हो गए, सुहेल अफरीदी रवाना हो गए। ऐसी कोई खबर नहीं है। जब वो रवाना होंगे तो सारी कौम देखेगी। जब असम्बली बुलाई जाएगी तो इस दफा की जो असम्बली होगी वो इस तरह नहीं बुलाई जाएगी कि असम्बली लगी, सीएम मुंतखब हो गए। इस असम्बली में आपको ये तमाम नौजवान नजर आएंगे, इस असम्बली में आपको यूथ नजर आएगी, और ये असम्बली कम होगी, जलसा ज्यादा होगा। और एक कारकुन के सीएम बनने की खुशी मनाई जाएगी। एक कारकुन जब सीएम बनेगा तो तमाम लोग देखेंगे। तो एक चीज तो वाजिया हो चुकी है, तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है। सरप्राइज है, सरप्राइज वो बिल्कुल बाकी है। वो सरप्राइज नहीं देगा अगर बता दिया जाए, लेकिन ये कंफर्म है कि सीएम सुहेल अफरीदी ही बनेंगे। कानूनी तौर पे मुशावरत जारी थी जो मुकम्मल हो चुकी है। असद कैसर स्पीकर को बुलाया गया क्योंकि स्पीकर ने ही सारी गेम करनी है। बाबर सलीम स्वाति को बुलाया गया, फाइलें आगे मौजूद थी, तो तमाम फाइलों से आर्टिकल, आइन सब कुछ देखा गया, तमाम कानूनी पहलू देखे गए, और ये तय किया गया कि हमारा सीएम तमाम हरबों के बावजूद, तमाम चीजों के बावजूद हमारा सीएम सुहेल अफरीदी है। ये वहां तय हो चुका है, और इसका बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट भी होगी, अजलास भी बुलाया जाएगा। और जब अजलास बुलाया जाएगा, क्योंकि ये एक चामगोइयां हैं कि रात के अंधेरे में अजलास बुला लिया जाएगा, रात के अंधेरे में ये चीजें होंगी, लेकिन अनाउंसमेंट हो जाएगी। और जिस तरह मैंने कहा कि जब अजलास होगा तो वो अजलास इस तरह नहीं होगा कि वो कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसा नहीं होगा। जब अजलास होगा तो तमाम लोग देखेंगे, तमाम लोग वहां शोर देखेंगे, तमाम वो लोग वहां नारे देखेंगे। तो अभी ये सूरत हाल है, और अभी की जो सूरत हाल है मैं आपको वाज़िया तौर पे बता चुका हूँ। रात का ये वक्त है, कानूनी पहलू पे मशावरत हो चुकी है, तमाम चीजें वहां हो चुकी हैं। जुनेद अकबर वहां मौजूद हैं, असद कैसर मौजूद हैं, शाहिद हटक मौजूद हैं, और जो सीएम सुहेल अफरीदी मौजूद हैं। ये तमाम लोग मौजूद हैं। और एक चीज, क्योंकि मैं वहां मौजूद था, काफी देर मौजूद रहा, एक चीज मैं नोट करता रहा, वो ये चीज है कि इमरान खान के हुक्म पे जो अडयाला जेल से हुक्म आया, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुत्हिद हो चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है। एक कारकुन से लेके, सोशल मीडिया से लेके, लीडरशिप से लेके, हर एक बंदा इस चीज पे मुतफिक है कि हमारा जो सीएम होगा वो सुहेल अफरीदी होगा। तो ये तमाम चीजें हैं। और इस टाइम आप ये माहौल देख लें, ये माहौल है इस टाइम यहाँ स्पीकर हाउस पेशावर में। और स्पीकर हाउस पेशावर से जल्द एक बड़ी खबर भी आएगी, जल्द अनाउंसमेंट भी होगी, स्पीकर हाउस पेशावर से ऐलान भी होगा। और कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कल का दिन खैबर पख्तूनख्वा के लिए, और कल का दिन तमाम उन मुखालिफिन के लिए जो ये चाहते हैं कि ये नाकाम हो जाएं, इनकी साजिशें नाकाम हो जाएं, उनके लिए बहुत अहम दिन होगा। ये सूरत हाल है इस टाइम स्पीकर हाउस की। बाकी बहुत सी चीजें हैं, कल भी बताएंगे, दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। इमरान जी जी, इमरान तेरा एक इशारा। देखें जी, ये कारकुनान मौजूद हैं यहाँ, यकीनन इनके जज्बात हैं। बाकी जो चीजें होंगी आपको बताते रहेंगे। दोबारा बाहर आ गए हैं, जुनेद अकबर साहब से गुफ्तगू करते हैं। जुनेद अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी इजलास हुआ, बड़े खुश नजर आ रहे थे, वीडियो नजर आई, सबका एतमाद है। इंशाअल्लाह ताला हम इस हमारी खुशी से आप अंदाजा कर ले कि हमारी तैयारी क्या है। इंशाअल्लाह ताला खान के साथ पहले भी डट के सब एमपीएस ने साथ दिया, अब भी इंशाअल्लाह खान के साथ डटे रहे। इंशाअल्लाह कोई गलत फहमी में न रहे कि पीटीआई के कोई एमपी आप तोड़ देंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी जितनी भी मेंबर है और हमारी कोशिश होगी, इंशाअल्लाह कल मैं और भी पार्टियों से मैं इंशाअल्लाह राबिता करूंगा, और हमारी कोशिश होगी जो 92 तो हमारे अपने हैं, और इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही होगी कि 100 से ज्यादा एमपी चीफ मिनिस्टर साहब को वोट मिले इंशाल्लाह। जुनेद अकबर साहब, आप कह रहे हैं कि 92 आपके अपने हैं, और आपकी ये कोशिश है कि उनके भी आप लेके आए। इंशाल्लाह ताला
कॉन्फिडेंस नहीं, मेरे कुछ क़यादत से बात भी हुई और किसने हमें बावर भी कराया है। इंशाल्लाह ताला हम अपने वोट आपको दे देंगे और कल मजीद भी मैंने राबिता ये आप करना है। बहुत बड़े सरप्राइज की बात बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हैं। इंशाल्लाह ताला तो ये जो हमारी सरप्राइज की बात की जा रही थी, आज बड़ी खबर चली कि आज ही कोई सरप्राइज आएगा, तो सरप्राइज क्या है लोग सुनना चाह रहे हैं। यही सरप्राइज है कि आप पहली दफा आप देखेंगे कि एक अवामी वजीर आला जो और ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी का इदारे का या वो किसी और का ये काम है, और पहली दफा लोग जो है, और ये हमें सोचना चाहिए कि क्यों हालात इस तरफ जा रहे हैं कि आपके इदारों और अवाम की फासले जो बढ़ रहे हैं। तो इसी के मैं पहली दफ़ा मैं आपको बता दूं कि पहले ये समझा जाता था कि जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वही होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम साबित करेंगे कि जो अवाम चाहती है वही होगा। गवर्नर का रोल कुछ है अभी तक या खत्म हो चुका है गवर्नर का रोल? नहीं, गवर्नर साहब तो किसी और से उसने इजाजत लेनी होती है, किसी और की इजाजत मिल जाएगी तो वो अपना आईनी किरदार अदा करेगा, उस इजाजत के बगैर तो उसने नहीं करना। लेकिन जो हमारे पास और ऑप्शन अवेलेबल ऑप्शन इंशाल्लाह उस पे हम अच्छा जुनैद अकबर साहब, आप ये बता दें कि कल तहरीक इंसाफ के जो स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान हैं वो एक दफ़ा दोबारा से तैयारी कर लें जश्न मनाने की, या क्योंकि यहाँ कारकुनान बड़े बेचैन हैं और सब ये सवाल कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या सीएम बन जाएगा हमारा, या इंशाल्लाह आपको रमन रहे और आप ये यकीन करें कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको नया सीएम जो है जो पीटीआई का होगा, और इंशाल्लाह जो खान का जिस पे इत्तेमाद है वो होगा, और इंशाल्लाह ताला पीके में वही होगा जो खान चाहेगा, जो हमारे पीटीआई वर्कर चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। तो जुनैद अकबर साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। अभी इजलास ख़त्म हुआ है और आज रात जो है वो अनाउंस हो जाएगा। अभी जो पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी उसमें सबसे जो कानूनी नुकता था वो ये था कि जो अली मीर गंडापुर साहब ने पहले जो इस्तीफ़ा भेजा था वो फैक्स के ज़रिए भेजा था, लेकिन अभी हैंड रिटन इस्तीफ़ा मंगवा लिया गया है और वो गवर्नर को कल भेज दिया जाएगा। जैसे ही वो रिसीव करेगा, अगर वो रिसीव नहीं करता तो कल कुछ कानूनी जो मराहल हैं। जी यहाँ एक और जी, चीज ऐड करें, जी, जी। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे उस्मान भाई कि पीटीए की गिनती पूरी होगी। बिल्कुल ये जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि हमने 100 का टारगेट रखा है, 100 का सेंचुरी करनी है। वो कह रहे हैं कि हम उनके लेके आएंगे। हाँ 92 हाँ, जी जी, ये अदील साहब हैं, ये एमपी हैं हरिपुर से। कितने? 105 इंशाल्लाह टच करेंगे। 105 टच करेंगे। हाँ देखें जी, ये तहरीक इंसाफ सरप्राइज देने के लिए तैयार है जी। अदील साहब, अभी आप भी अंदर मौजूद थे, कैसा सरप्राइज देने जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम कौम आपकी तरफ देख रही है और मुखालिफिन भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ क्या मूव करने जा रही है, क्या उनका इरादा है, क्या स्टेप लेगी। बस इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो इमरान खान की नॉमिनेशन है उसके साथ पूरी कौम खड़ी है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा खड़ा है, और इंशाल्लाह हमें आपको इंशाल्लाह सरप्राइज भी देंगे और गुड सरप्राइज देंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो दूसरी जमातों में से भी कुछ बंदे इंशाल्लाह हमारे साथ सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। उस्मान साहब, ये बड़ा सरप्राइज है कि वो 100 प्लस जुनैद अकबर कह के गए हैं, और ये अदील इकबाल जो हरिपुर से एमपी है वो कह रहे हैं 105 हमारा टारगेट है, 105 नॉट आउट। देखिए जी 105 नॉट आउट, और मैच जाहिर है फिर जीत जाए जब बंदा तो फिर तो ओवर इनके पास अभी भी पड़े होंगे, लेकिन ये मैच जीत जाएंगे अगर 105 ये सेंचुरी बना लेते हैं। खुशी की खबर होगी, हमारा सीएम सोहेल अफरीदी होगा, ये खान साहब की नॉमिनेट है, इंशाल्लाह इसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, इंशाल्लाह ये खुशी से धड़ल्ले की दौर पे आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, देखें जी ये सूरत हाल है, बाकी आपको इंशाल्लाह अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।